Assalamu alaikum. In this first video, we are going to cover some basics of Microsoft Word. इसमें हम कुछ डॉक्यूमेंट की सेटिंग करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू सी के इफ़ वी डू समथिंग नाउ इसका हमें स्टेप बाय स्टेप कितना हमारा टाइम सेव हो सकता है. दिस इज़ इन कनेक्शन विद ऑल द वीडियो सीरीज़ जिसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ कि if you are writing a thesis, a research article, or any such thing that you write, and you are a student or a professional by job and you really want to work on Microsoft Word quite a lot, तो document setting में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि which are not commonly known. So दो चीज़ें मैं discuss कर रहा हूँ. If they are very basic for you, no issue. You can navigate away from this page and watch some other video that suits your level. लेकिन this is normally for students or thesis writers or researchers. So if you feel you don't need these, if you don't know these things, then keep watching, and I hope that you benefit from the contents of this video. Okay, let's get started. सबसे पहले हम Microsoft Word 2007 और 2010 की बात कर रहे हैं and the coming versions. और 2007 और 10 के अंदर options are similar. 2010 is a little improved. So let's see how things are. First of all, when you open Microsoft Word 2007 or 10, you see a layout like this. Let's maximize this. Okay. अच्छा होता ये है कि if I start typing things, that is, this is a test line. So you must realize that this is a font size that is Calibri. It's 11, and I really don't understand why this is set like this by default. Same is the case with ये तो हमारा text हो गया. आप देखते हैं कि if I say title and I write words like heading, I like words like sub heading, and so on. So अब Word 2007 के अंदर 2010 के अंदर you have certain default templates. Like title की template क्या है, title का font size वगैरह क्या होना चाहिए, इस पे आप select करें. Just select this one. As you can see, this is a full list of style sheet. You click here, it is set to 26 in Cambria, and a heading by default is set to sort of blue color and 14 font size and Cambria heading and bold as well, and subheading goes like this, and your text, like I said, goes like this. So you can see the font size and styles. अब होता ये है कि most of the cases में I don't really know, I have not seen much कि Calibri बेसिक टेक्स्ट के लिए कहीं रिक्वायर्ड हो. एकेडमिक एनवायरनमेंट में तो मुश्किल है. नॉर्मली इट्स टाइम्स न्यू रोमन और एरियल. सेम गोज़ फॉर हेडिंग, सेम गोज़ फॉर टाइटल्स. कलर्स ब्लू हैं, नॉर्मली वी गो फॉर ब्लैक कलर्स. सो अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आपको नॉर्मली ये चीज़ें मैनुअली करनी पड़ती हैं. पहले टेक्स्ट सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन किया एंड फॉन्ट साइज़ को 11 से 12 किया और सो ऑन. सो हम क्या करेंगे, इन दिस फर्स्ट स्मॉल वीडियो वी आर गोइंग टू डू सम बेसिक सेटिंग्स जो हमारे पास परमानेंटली दे विल स्टे विद अस थ्रू आउट द टाइम वी हैव टू वर्क ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और मे बी फॉर एवर. Okay, so what we do is we are going to click here. जितने भी ये styles हैं, they are predefined, but we can modify them. How do we do that? Click here, and now you have all of these styles listed here. Normal. Now let's start with the normal. Normal means normal text. So normal text, what does a normal text look like? So आप इस drop down पे click करें, click on modify. It's going to show you. This is the normal template, और by default उसमें setting ये है Calibri 11 font size, no bold, no italics, no underline. So आप इसको change कर दीजिए to Times New Roman, and you think that you are always going to work in आपकी जो normal document है उसके अंदर text size 12 होगा. ठीक, no other issues. अगर हाँ, अब यहाँ again अगर आप एक बड़ी document पे काम कर रहे हैं जिसे thesis कह सकते हैं और research paper और रिपोर्ट और समथिंग, सो आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट में शुरू में आप सेटिंग कर लें और जितनी रिपोर्ट्स बनाएं उन सब में लाइन स्पेसिंग क्या होगी. से दिस इज़ सिंगल एंड दिस इज़ 1.5 एंड दिस इज़ प्रोबेबली डबल. यस. और फिर ये हमारे पास पैराग्राफ स्पेसेस हैं, आप जितनी स्पेसेस देना चाहें. सो मैंने सेट कर लिया कि मेरी तमाम डॉक्यूमेंट का जो फॉन्ट साइज़ है वो 12, फॉन्ट टाइप टाइम्स न्यू रोमन, और
spaces 1.5. ठीक. अच्छा, one important option, that is this one, only is in this document. You want these changes to remain in this document only जो आप बना रहे हैं, या you want them to be forever. If you want them to be forever, which I would personally prefer, you just should click here. It doesn't really matter, आप इन options को change बाद में भी कर सकते हैं. New documents based on this template. So all the documents that you will produce onwards are going to be based on this style sheet. हमने जल्दी से ये text को set कर लिया. You see ये automatically change हो चुका है Times New Roman और 12 पे. Let me write another line और आप देखेंगे कि मुझे change नहीं करना पड़ेगा. This is the second line. So एक चीज़ हमने set कर ली कि हमने text कर लिया. अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसकी 1.5 line spacing कैसे आएगी, I'll just click. अब मैं लाइन थर्ड डाल रहा हूँ. दिस इज़ दी थर्ड लाइन. ठीक. सी, आई एम सेलेक्टिंग द टेक्स्ट. लेट मी शो यू द लाइन स्पेसिंग 1.5. इट इज़ सेट बाय डिफ़ॉल्ट. आई हैव नॉट डन इट. ठीक. और इट इज़ सेट ऑन द लेफ्ट. सो एक ऑप्शन हमने ये सेट कर ली. अच्छा, आगे चलते जाएँ. We have the option of how your headings should look like. Please understand, एक होती है heading, एक होती है सब heading. So आपको देखना ये है कि आपके काम के अंदर कितने level की headings आ रही हैं. Like let me show you the levels. They go something like this. ये है आपका जो top पे आ रहा है main heading, sub heading, उसकी sub heading, उसकी sub heading. So it goes down and down and down. Normally एक normal document which I should say, अगर आपको required नहीं है तो हेडिंग और सब हेडिंग तक ही रहती है. सो आप डिसाइड कर लें कि आपकी मेन हेडिंग्स का स्टाइल क्या होगा. सो लेट्स गो. ड्रॉप डाउन, मॉडिफाई. आप कहते हैं कि मेरी तमाम हेडिंग्स भी टाइम्स न्यू रोमन में हैं. दे आर गोइंग टू बी बोल्ड एज वेल, बट देयर कलर इज़ गोइंग टू बी ब्लैक. आई डोंट वांट देम टू बी ब्लू. ओके, एग्रीड. अच्छा, इसमें लाइन स्पेसिंग ये हुई है. दैट इज़ ऑल्सो फाइन, नथिंग मोर. कुछ और ऑप्शंस हैं दैट आई शुड लाइक टू शो यू. फॉर्मेट में आप यहाँ क्लिक करें तो आपके पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं कि लाइक फ़ॉन्ट तो अभी हमने सेट कर लिया. पैराग्राफ में हम आ जाएं तो उसमें ये लिखा हुआ है बिफोर, कि हाउ मच स्पेस इज़ देयर बिफोर द हेडिंग. यू मस्ट हैव सीन कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है. ये 24 पॉइंट्स हुई. यू ब्रिंग इट डाउन टू 12 जो कि नॉर्मल है. सो क्लिक ओके. सी, इट ग्लोज अप एंड इट बिकम्स अ काइंड ऑफ नॉर्मल. ये पैराग्राफ में था. इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेडिंग्स इंडेंटेड हो, थोड़ी सी अंदर हो, सो यू मे हैव ऑप्शंस ऑफ टैब्स, अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर. यू कैन सेट दैट हेयर ऑल्सो. जितनी ऑप्शंस आप सेट करें, यू कैन प्ले विद द ऑप्शंस. फॉन्ट्स में काफ़ी ऑप्शंस. अगर आप चाहते हैं कि दिस टेक्स्ट शुड बी अंडरलाइंड बाय इटसेल्फ, सो हम वो भी चेक कर सकते हैं. दैट कैन बी डन हेयर. आपकी हेडिंग्स अंडरलाइन हो, दैट इज़ ओके. सो ये आपने सेट कर लिया. अगेन न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट. ओके, लेट्स गो क्विकली. सब हेडिंग्स. सब हेडिंग को इट कॉल्स हेडिंग 2. आप यहाँ क्लिक करके मॉडिफाई करते हैं. यहाँ पर आप हेडिंग 2 की बजाय सब हेडिंग लिख दें तो दैट इज़ गोइंग टू बी ओके. ये आपने एक दफ़ा ही सेट करना है. यू डोंट हैव टू डू इट ऑल ओवर एवरी टाइम. अगेन आपकी सब हेडिंग्स बी टाइम्स न्यू रोमन है फॉर इंस्टेंस, और आपका फॉन्ट साइज़ 13 की बजाय यू हैव इट 12 एंड द कलर, येस, इट शुड बी ब्लैक. And what else we want to do? We want them to be a little indented. Paragraph, indentation, before text and after text. So before text का मतलब है कि if it is on the left side, आप कहते हैं कि you just keep your eyes here. मैं इसको 3 points, 4 points, 5 points, 6 points. एक नॉर्मल इंडेंट का जब आप टैब का बटन दबाते हैं अपने कीबोर्ड पे, तो मेरा ख्याल है वो 5 या 6 points तक लेफ़्ट से अंदर जाता है. आपने ये कर लिया, आपकी सब हेडिंग अंदर चली गई. नथिंग एल्स. बाकी स्पेस बिफोर सब हेडिंग ये 10 या 12 रहती है आमतौर पे. नो चेंज इन दैट. क्लिक ओके. ग्रेट, हमारी सब हेडिंग इधर चली गई. सो अब यहाँ देखिए कि मैंने चेंजेस की. नॉर्मल में चेंज की तो नॉर्मल ये इस तरह हो गया. हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2. इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हेडिंग 2 में मैंने यहाँ पे सब हेडिंग लिखा तो उसने मुझे कहा कि इसको हेडिंग 2 एक इंडिकेटर है कि ये हेडिंग 2 है और सब हेडिंग आपने लिखा हुआ है. सो यू शुड रिमेंबर दैट. Let's quickly see a few more styles. Title, हाँ, title of the thesis or title of the chapter, right? So title को आप set कर लें. modify title Times New Roman, size for example 16. और इसके अलावा हाँ, you want the chapter titles to be all caps, all small, format, font और all caps. See, you have set that too. अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप कहते हैं कि चैप्टर टाइटल जो है वो सेंटर में आए. ओके, डन. और उसका कलर ब्लैक हो, डन.
और उसके साथ आप चाहते हैं कि नाउ हेयर इट इज़ शोइंग एज समथिंग अंडरलाइंड. Okay. You have to finish the line that comes under a chapter. That is the full long line. I have just removed that, if you could see, from border. The line, we want this to be in the center. अब आपकी option है, you want this to be underlined too. Your option, fine. So please go by the instructions you get in your relative disciplines. You are writing a research paper based on Chicago style. You're writing a thesis based on MLA, APA, Chicago, Harvard, Thorabian, name it. So आपने उस स्टाइल के मुताबिक चलना है. उसकी स्टाइल गाइडलाइंस पहले एक दफ़ा पढ़ ली और डॉक्यूमेंट बनाने से पहले इन जगहों पे जाके ये चेंजेस कर ली, एंड आफ्टर दैट यू आर कम्प्लीटली सेफ. यू आर जस्ट गोइंग टू गो ऑन राइटिंग एंड यू डोंट रियली हैव टू बॉदर. करना आपने सिर्फ ये है कि वंस यू आर डन विद इट, आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है. आप कहते हैं लिटरेचर रिव्यू. दिस इज़ योर नेक्स्ट हेडिंग. सॉरी, जस्ट अ मिनट. यू से chapter 2 literature review. Chapter, just select chapter. This is your title and we have set this in the background. किसने सेंटर में जाना है और ये फॉन्ट साइज सब चीज़ आपने सेट कर ली. लिटरेचर रिव्यू, दिस इज़ योर मेन हेडिंग. हेडिंग 1 ये आपकी मेन हेडिंग हो गई. अच्छा, द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि फॉर इंस्टेंस आप कोई चीज़ करते हैं और बाद में आपको पता लगता है कि चैप्टर टाइटल जो है दिस हैज़ टू बी ये 16 की बजाय 18 होना चाहिए. नो इशू, डोंट नीड टू वरी, डोंट नीड टू जस्ट गो इंडिविजुअली एंड चेंज इट. सिर्फ आप क्या करेंगे, आप डॉक्यूमेंट की स्टाइल शीट में जाएंगे, यहाँ से अगेन टाइटल को सेलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई, यहाँ पे आप उसको 16 से कर देंगे 18 एंड देन यू हिट ओके. ये देखिए it is already set by itself. So it's a very handy way of doing things instead of going manually. I have seen students इनका बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है इन कामों में. फॉर्मेटिंग एक बहुत बड़ा it looks like a big mountain to people. It is really not. आप थोड़ा सा तरीके से काम करें और बिफोर हैंड चीज़ों को हैंडल करें तो they really help you a lot. मैं एक आखिरी बात बता के I'll move on. That is you have things like quotations. Oh yes, quotations. How are quotations settled? अब देखिए ये क्या है. This is italics. You see the italic. आप इसको कहते हैं कि my quotations should not be in italics. Okay. We have just done that, and then you say that my quotations are going to be the same font size. Agreed. Then you are of the view that they should be indented from the left. Okay, indentation before text. सही. 5 space 1 tab from the left 5 या 6 का बनता है. confirm that yourself. और on the right side भी आप चाहते हैं कि वो right से भी indent हो जाए, then you just go after the text. सही, that is done. And okay, and you want your text to be what? That is it. So ये आपका this is your quotation format. So आपने quotation को भी set कर लिया, and this is Times New Roman again. If your quotations are supposed to be smaller in size, make it 11, make it 10. होगा क्या कि you have some text. Let me insert some text here. I am going to put some text here, and I mean this text is a quotation that I am going to put in my work. Very simple. Select the text, go down here, find quote, and I have just done that, and it is resized, indented from left, indented from right, and I have no issues. So in this video what we have seen is how to do some basic settings in that's regarding the text format, text का size और तमाम चीज़ें आप कैसे set करते हैं. Watch the other video and उसमें I'll show you some further tips कि आप चीज़ों को बेहतर manage कर सकते हैं. Thank you for watching. I hope this helps. Allah Hafiz.